وہ ہے ایمان میں شفا۔ اپنی اپنی بائبل مقدس کھولیں گے اور میرے ساتھ نکالیں گے مقدس یعقوب رسول کا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ ایک ہی آیت کو ہم خداوند خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور آج خدا کے کلام میں سے برکت پائیں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں گے کلام مقدس میں خداوند خدا فرماتا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ کلام اقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا، قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام مقدس میں خداوند کا بندہ جو ہے وہ ہم سبوں تک خدا کے کلام کی رسائی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے اس کے باعث بیمار بچ جائے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، خادموں کے پاس جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پاسٹر صاحب ہم نے بڑی دعائیں کروائی ہیں لیکن شفا نہیں ہوئی، حال جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ خدا کا کلام فرماتا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی، کس کے ساتھ کی جائے گی؟ ایمان کے ساتھ کی جائے گی، اس کے باعث بیمار بچے گا۔ اور آگے لکھا ہے کہ خداوند خدا اسے اٹھا کھڑا، خداوند خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ ویسے تو خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے بیماروں کو بہت ساری بیماریوں سے شفا بخشی ہے، لیکن جس چیز کا خداوند یسوع مسیح نے محبت کے ساتھ اظہار کیا ہے، جس چیز کو خداوند یسوع مسیح نے بہت زیادہ ترجیح دی ہے، وہ ہے ایمان۔ وہ کیا ہے؟ ایمان۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس لوگ بہت سارے بیماروں کو لے کر آئے، جن میں ٹنڈے، لنگڑے، بدو گرفتہ اور بہت ساری بیماریوں میں جو گرے ہوئے تھے، ان میں سے بہت سارے کوڑی بھی تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے سب کو شفا دی اور سب کو اچھا کر دیا۔ لیکن بہت سارے ایسے شخص ہیں جن کو یسوع مسیح نے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ آئیے دیکھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 9واں باب اور اس کی 2 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یسوع نے کہا جو لوگ مفلوج کو 4 پائی پر اٹھا کر چھت کو ادھیڑ کر نیچے یسوع کے پاس لائے تھے، یسوع مسیح نے اس مفلوج کو کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اور جنہوں نے اس چھت کو ادھیڑ کر مفلوج کو یسوع مسیح کے پاس پہنچایا، ان لوگوں سے یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا ایمان بڑا ہے۔ یسوع مسیح نے ان کے ایمان کو دیکھا، ان کے ایمان کو جب چیک کیا تو یسوع مسیح نے مفلوج سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، خاطر جمع رکھ۔ اور یہ واقعہ جو تھا یہ کفر نحوم کے اندر واقع ہوا، اور یسوع مسیح نے
दूसरी जगह पर मत्ती की अंजील 15वां बाब और उसकी 28वीं आयत में उस कनानी औरत से जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही थी और यीशु से कहती थी कि मेरी बेटी बीमार है, उसे शिफा दे। उसे एक बदरू सताती है और यीशु मसीह ने वहां पर कुछ सख्त अल्फाज भी बोले। यीशु ने उस कनानी औरत से कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। लेकिन वो औरत जो थी वो जानती थी कि यीशु मसीह ही शिफा का मबदा है और यीशु मसीह ही शिफा देने में कादिर मुतलक है और यीशु मसीह ही मेरी बेटी को अच्छा कर सकता है। उसका ये ईमान था और उसने कहा कि ऐ मालिक, कुत्ते भी तो मालिकों की मेज से गिरे हुए टुकड़े खाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जिस चीज का इजहार वहां पर किया है, जिस चीज को यीशु मसीह ने वहां पर तरजीह दी है, वो है ईमान। उस औरत से यीशु मसीह ने कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो जब लाजर को जिंदा किया, लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था, जब लाजर को जिंदा किया गया, तो जब यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के साथ गुफ्तो शरीक करते हैं, तो मुकद्दसा मरियम जो है वो उसके साथ जब बातचीत करता है यीशु मसीह, तो वहां पर भी ईमान की बात होती है। यीशु मसीह कहते हैं, अगर तू ईमान लाएगी तो मौजज़ा देखेगी। यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा भाई जी उठेगा, और मरियम कहती है कि मैं जानती हूं क़यामत के दिन वो जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, अगर तू ईमान लाएगी तो मौजज़ा देखेगी। क्या तू ईमान लाती है? वो कहती है, खुदावंद मैं ईमान ला चुकी। तो जब यीशु मसीह कब्र पर जाते हैं तो यीशु मसीह लाजर को आवाज देते हैं, तो कलाम में लिखा है कि मुर्दा कफन समेत बंधा हुआ कब्र से बाहर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हमारे ईमान की बात है। और जब हम देखें वो औरत जो 12 वर्षों से बीमारी के अंदर मुब्तला थी, जो अपना मालो मता सारा तबीबों और हकीमों को लुटा चुकी थी, जिसने अपनी बीमारी के बायस बहुत सारा दुख उठाया था, जो लागर और कमजोर हो चुकी थी, जब उस औरत को हम देखते हैं तो जब वो जाकर यीशु मसीह की पेशाब का किनारा छूती है तो वो अपनी सारी बीमारी से शिफा पा जाती है। जब यीशु के पास उस औरत को दोबारा लाया जाता है तो यीशु मसीह उससे कहते हैं, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद खुदा है, जो हमें जिंदगी बख्शने वाला है, जिसने हमें दुनिया की तमाम कौमों में से चुन लिया ताकि हम उसके साथ खुदावंद के बेटे और बेटियां बनने का हक लें, वही यीशु मसीह ईमान को तरजीह देता है। ईमान, अब ईमान की अगर हम तस्वीर देखें, अगर ईमान को हम देखना चाहें तो सबसे पहले तो कलाम में लिखा हुआ है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। जो चीज नजर नहीं आती, गोया कहा जाए कि ये यहां मौजूद है, तो ये ईमान है। ये ईमान की तस्दीक है। अगर मैं कहूं कि इस दीवार के पीछे 10 घोड़े बंधे हुए हैं तो आप बगैर
जिंदगी बख्शी है, जो हर रोज अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है, नजर नहीं आता और हम मानते हैं कि खुदा मौजूद है। ये ईमान है, ये ईमान की तस्वीर है, ये ईमान है। और जो कनानी औरत जब यीशु के पीछे जा रही थी, तो वो जिस जगह पर मौजूद थी, वहां पर खड़े होकर यीशु मसीह ने कहा कि तेरी बेटी शिफा पा जाएगी। तो वो औरत ईमान रख के जब वापस जा रही थी, तो सामने से एक शख्स उसकी तरफ आ रहा था और उसने उससे कहा कि तेरी बेटी बच गई है। तो उसने कहा कि क्या टाइम था, क्या घड़ी थी जिस वक्त से उसे आराम आना शुरू हो गया था। तो जब उसने वो टाइम बताया, तो उसने कहा हाँ, खुदावंद ने इसी टाइम कहा था। ये ईमान है, ये ईमान है, ये ईमान की हालत है। आज अगर हमारी जिंदगियों के अंदर मौजज़ात नहीं हो रहे, आज अगर हमारी जिंदगियों के अंदर से बीमारियां नहीं जा रही, आज अगर हम तंग दस्तियों के अंदर हैं, अगर हम आज कंगाली की लांकों के अंदर फंसे हुए हैं, तो ये हमारे ईमान की कमजोरी है, ये हमारे ईमान की कमजोरी है। और ईमान के ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना ईमान है, तो तू इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। ये ईमान, ये ईमान है। अभी पिछली रात की ही बात है, एक बहन मेरे पास अपना छोटा बच्चा लेकर आई, जिसकी टांग के अंदर दर्द था और वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था और वो चीखें मार रहा था, और वो बेटी जिसका बेटा था वो बहुत ज्यादा परेशान थी। जब आकर उन्होंने मेरा दरवाजा नॉक किया, मुझे उठाया, तो मैंने उस बच्चे के सर पर जब ईमान से हाथ रखा, तो खुदा ने उसी वक्त उस बेटे को शिफा दे दी और वो बेटा सो गया और सारी रात सोया रहा, सुबह उठा। ये खुदावंत के नाम को चला। और कलाम में लिखा हुआ है कि जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी, उसके बायस बीमार बच जाएगा। और कलाम में लिखा है खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। अगर हम गिर जाते हैं गुनाह के सबब से, तो अगर हम ईमान में मजबूत रहते हैं और खुदा के सामने झुक जाते हैं, अपनी खताओं का इकरार कर लेते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदावंद का हाथ हमें उठा खड़ा करता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सादत अगर गिर जाए तो वो गिरा ना रहेगा, बल्कि खुदावंद का हाथ उसे उठा खड़ा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कलाम में लिखा है अगर उसने कोई गुनाह भी किया हो, तो खुदावंद ने उसकी भी माफी। अगर हम ईमान में मजबूत हैं, तो हमने अगर कोई गुनाह किया है, तो उस गुनाह को लेकर हम खुदा के हजूर खाकसार हो जाते हैं, खुदा के हजूर झुक जाते हैं, तो खुदा फरमाता है कि वो गुनाह भी माफ कर दिया जाए। मेरे अजीजों, ये ईमान है। ये क्या है? ईमान है। अब हमारा ईमान जो है, हमारा ईमान किस पर हमारा ईमान है? किस पर हमारा ईमान है? किसने हमारे लिए सलीब पर जान दी है?
और किसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी मेरे अजीजों, मेरा और आपका यीशु मसीह जो है, हमारा ईमान यीशु मसीह पर है और हम अपने ईमान का इजहार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने हमारे दरमियान रहकर जिंदगी बसर की और यूहन्ना की इंजील में लिखा है हमने उसे रूबरू देखा बल्कि उसे छुआ भी, वो हमारे दरमियान रहा। मेरे अजीजों, ये हमारा ईमान है कि वो मर गया, मसलूब हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और लिखा है कि वो किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। ये हमारा ईमान है। अगर हम इस बात पर ईमान रखते हैं तो हम पहाड़ों से कहें तो वो उखड़ जाएंगे। आज के जो पहाड़ हैं वो पहाड़ कौन से हैं जिनको हमने ईमान के साथ उखेड़ा है? वो पहाड़ बीमारियों के पहाड़ हैं, वो पहाड़ परेशानियों के पहाड़ हैं, वो पहाड़ मुसीबतों के पहाड़ हैं, वो पहाड़ ना इत्तफाकी के पहाड़ हैं। हम सब ने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ईमान रखना है और ईमान के साथ दुआ करनी है। और जब हम ईमान के साथ दुआ करेंगे तो सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां, सारी तकलीफें, सारी तंगदस्तियां यीशु के नाम से जाती रहेंगी और हम यीशु के नाम से हालेलुया। इससे पहले कि हम बीमारों के लिए खुसूसी दुआ करें, मैं चाहूंगा कि हम सब अपने ईमान का इजहार करें। मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसकी कुदरत बेअंत है, और मैं ईमान रखता हूं खुदावंद यीशु मसीह पर जो मसलूब हुआ, मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा और जहां से फिर वापस आने वाला। अगर मुकाशफा की किताब को पढ़े तो वहां पर लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। ये हमारा ईमान है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं तो ये हमारा ईमान है, हम ईमानदार हैं। तो फिर जब हम ईमानदार हैं तो फिर जब दुआ करेंगे तो बीमार शिफा पाएंगे, क्योंकि हमारा जिस पर ईमान है शिफा का मंबा, शिफा का मबदा खुदावंद यीशु मसीह है। सो खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।